اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی. جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو اپنے فطرت پہ بنایا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں میرے فرشتے جو سلون کنیکٹڈ ہیں رحمۃ اللہ عالمین سے، نبی سے، اے مان اللہ تم بھی کنیکٹڈ ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر اصغر اور میرے ساتھ ہمارے بہت ہی ہردل عزیز استاد محترم ڈاکٹر فواد اعوان صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور جو ہے وہ آپ ہمیں میسر رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے عرفان کی بات کی اور کیسے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن اگر میں اس پروگرام کا آغاز آپ سے اس سوال سے کروں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرفان ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم بیسیکلی عرفان کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. بی پریسائز آن دس کویشچن. آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کی کیا انپٹ ہیں اس کے اوپر؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا، اگر ہم اس کو پچھلے پروگرام کے سیکوینس میں لے کے چلیں تو ہم اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ہم یہ کام کیوں کریں. تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہمارا فطری تقاضا ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے. اچھا، انسان کے کچھ فطری تقاضے ہیں جو وہ اپنی پیدائش کے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں. وہ ہیں کھانا پینا، سونا جاگنا، اور باڈی سے کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ہم جو کھایا پیا اس کو ہم باڈی سے یوز کرنے کے بعد نکال دیتے ہیں. اب یہ 5 ایسے فطری تقاضے ہیں جس کو پورا کیے بغیر کوئی بھی انسان، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا. دوسرا یہ کہ وہ سیٹسفائی تب تک نہیں ہوگا جب اس تقاضے کی تکمیل نہیں ہو جائے گی. بھوک کا تقاضا، پیاس کی شدت، نیند بہت جب ایک پیک پہ چلی جائے تو وہ کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ اپنا مطلب وہ ٹائم گزار نہیں سکتا، اور الٹیمیٹلی وہ یہ کہا جاتا ہے نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے. اچھا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا چھٹا فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، کیونکہ خالق نے یہ تقاضا بڑی ڈیفالٹ سیٹنگ میں رکھ دیا. تو کس طرح سے یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے 5 تقاضے پورے کریں، پھر ایک تقاضا فطری چھوڑ دیں اور ہم سیٹسفائی ہو جائیں؟ کیونکہ فطری تقاضے کی تکمیل کیے بغیر انسان سیٹسفائی نہیں رہ سکتا. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں کہ اس کو اب اللہ کا عرفان کیسے حاصل کیا جائے. اچھا، اب اللہ کا عرفان کیسے حاصل کیا جائے، تو اس کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونک دی. جب اللہ نے اپنی روح پھونکی تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے انسان کو اپنے فطرت پہ بنایا ہے. ہم نے یہ بھی چیز تھوڑا سا ڈسکس کی تھی کہ جو ہمارے فزیولوجیکل نیڈز ہیں یہ کسی بھی طرح سے نعوذ باللہ اللہ کی نیڈز نہیں ہیں. مطلب ہمیں بھوک، پیاس، نیند، اللہ تعالیٰ تو اپنی اسپیسیفکیشن میں بتاتے ہیں کہ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ ان ضروریات سے مابر ہے. لیکن بالکل دوسری طرف بالکل جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے ہمیں لا محالہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا یا ہمیں اس کو تفکر کرنا پڑے گا کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کس رخ کی بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے جس کا اگر ہم کہیں کہ میچ کیا جا سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارے سامنے روح ہی ایک ایسی ڈائمنشن آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ ہے. وہ بھوک، پیاس، نیند اس چیز سے ماور ہے. مثلاً جب ہم سو جاتے ہیں، ہم سو گئے اور ہم نے کہا جی میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے کچھ انسیڈنٹس دیکھے، میں نے کھانا کھایا، کچھ باتیں کی، پھر کچھ سوال جواب ہوئے اور پھر میری آنکھ کھل گئی. اچھا، اب عمر بھائی سوچیے ذرا کہ آپ سو گئے، آپ نے خواب بھی دیکھا. اب میں جی سو گیا، میں نے خواب بھی دیکھا، میں نے ان محسوسات کو ذہن میں محسوس بھی کیا اور سب کے سب چیزیں میرے ذہن میں بالکل ایسی تھیں جیسے میں خود اس پروسیس سے گزرا. تو پھر سویا کون؟ سوال ہے پھر سویا کون؟ اگر آپ باڈی. نے دیکھا تو پھر وہ کہنے کا مطلب یہ کہ پھر آپ کون ہوئے؟ اب اس پہ جب ہم سوچیں گے تو ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ زاویے کھلنے شروع ہو جائیں گے کہ اگر ایک چیز ادھر بھی ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، اب وہ والا جسم جو خواب والا جسم ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہے. بالکل دوسری طرف ہمارے سامنے یہ والا ایک جسم ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس میں باؤنڈ ہے. تو پھر اس میں ہمیں یہ پرسونیفائی کرنا پڑے گا پھر میں کون ہوں جو اس پروسیس سے بھی گزر رہا ہے، اس پروسیس سے بھی گزر رہا ہے. اس کا مطلب ہے میرا جو اصل تشخص ہے وہ اس باڈی سے ماورا ہے، اس سے کہیں بہت اوپر کی چیز ہے.
अच्छा, जब इंसान अपनी रूह पर तफक्कुर करता है, अब रूह देखें कि एक ऐसी चीज़ है जो इस बॉडी में भी काम कर रही है, उस बॉडी में भी काम कर रही है, और रूहानी लोग ये बताते हैं कि इस तरह के इंसान के 11,000 परत है, और हम इस एक परत के पीछे, इसकी बीमारी के पीछे, इस पेंडेमिक में, और इसमें हम इस हद तक खौफजदा हैं। अगर अब मुझे ये पता चल जाए कि इस तरह के मेरे 11,000 परत है, और हर परत पहले परत से ज़्यादा, हर परत पहले परत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर हम ख्वाब वाले परत की बात ही कर लें, ख्वाब वाले जिस्म की बात कर लें, वो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। मैं सोच रहा था अगर वो ख्वाब ख्वाब वाला परत इस दुनिया में एक्टिवेट हो जाए तो आई विल बी अ सुपरमैन। वो टाइम एंड बिल्कुल, स्पेस से आज़ाद है, वो फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, वो मतलब उसके बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं उसके पास, वो ऐसे ऐसे काम ख्वाब में कर लेता है जो ज़िंदगी में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहला पर्थ ही अगर सुपरमैन है तो 11,000 पर्थ अगर उस लेवल पे सोचा जाए तो फिर इंसान की हकीकत क्या हुई। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है रूह। रूह हर पर्थ के अंदर उसकी कैपेसिटी के मुताबिक अपना आप रिफ्लेक्ट करती है। हर पर्थ की कैपेसिटी है, इस बॉडी की कैपेसिटी इससे ऊपर ये नहीं जा सकती। इस तरह से काबिल जिस्म की अपनी कैपेसिटी है, वो उस लेवल पे जाएगा। इस तरह से अगर आप देखते चले जाएं तो इसका मतलब ये हो कि अल्लाह ताला ने अगर अपनी रूह फूंकी, अगर हम उस हदीस के मसदाक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अब ये तफक्कुर का एक ऐसा सफ़र है, इसमें अगर आप देखें तो अम्बिया इकराम से लेके बहुत सारे और भी लोग डिफरेंट मज़ाहिब के अंदर जंगलों में भी गए, बियाबानों में भी गए, पहाड़ों पे भी गए, आइसोलेशन में चले गए, अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर लिया सिर्फ इस तफक्कुर में, क्योंकि इंसान के अंदर ये ऐसा फितरी तकाजा है, अगर एक दफ़ा ये एक्टिवेट हो जाए तो फिर इंसान को किसी पल चैन नहीं आता। वो कहता है कि अगर मैं इस जगह आया हूँ और मैंने चले जाना है, क्योंकि एक बात तो फॉर श्योर है कि हमें किसी चीज़ की श्योरिटी हो या ना हो, हर बंदे को पता है कि उसने मरना है। इस चीज़ की श्योरिटी हर बंदे को है, लेकिन जिस चीज़ की श्योरिटी उस पर कभी हमने गौर नहीं किया। तो अगर आए हैं और जाना भी है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पर तफक्कुर करना चाहिए। अच्छा, जब फिर एक चीज़ जो हर जगह पे एक्टिवेटेड है, हर परत में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो कॉमन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपने इस तशख़्ख़ुस से रूह के तशख़्ख़ुस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, मैंने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरा असल रूह है। अब रूह जो अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसान में अपनी रूह फूंकी, इसका मतलब ये रूह से आशना हो गया तो अल्टीमेटली मैं अल्लाह से भी आशना हो जाऊंगा, क्योंकि वो उसी की फितरत पे है, और हम फितरत को पहचान सकता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में अपनी पहचान कर तकाजे के साथ साथ उस चीज़ की कैपेसिटी भी रख दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी मौजूद है उन सबसे पूछा कि तुम मेरी इमानत का बोझ उठा सकते हो, उन सब ने इनकार किया। बिल्कुल, पहाड़ों ने, दरख्तों ने, इंसान ने बिला सोचे समझे ये बोझ उठा लिया। इसका मतलब ये उठा सकता है, बाकी उठा ही नहीं सकते इस बोझ को। इसमें ये बिल्कुल, कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, और ये जालिम और जाहिल है, क्योंकि वो उस बोझ को उठा तो चुका, लेकिन वो उससे वाकिफ़ ही नहीं कि उसने क्या बोझ उठाया, बिल्कुल, उसके पास क्या ऐसी सलाहियत है। तो जब हम उस चीज़ पर तफक्कुर करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी आप समझ लें प्रैक्टिसेस हैं, हर मज़हब में राइज हैं। तो उनका मकसद भी यही है कि हमने उस पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए किस तरह से अल्लाह ताला का इरफान हासिल करना है। अच्छा, अब अगर हम इस चीज़ को इस तरह से देखें कि अब मुराकबा करते हैं, गारे हरा की सुन्नत है, अब सलात कायम करते हैं, ये सारी की सारी जितनी भी इबादत थी ये वो मीन्स थे जिसके थ्रू हमने अल्लाह ताला की ज़ात का इरफान हासिल करना था, ये एंड नहीं थे। हमने इनको रिचुअल बना के हमने कहा कि ये आपने काम करना है, ये ज़िंदगी का हासिल है, आपने नमाज पढ़नी है, सलात कायम करनी, रोज़ा रखना, बस। और हमें इस तफक्कुर की तरफ हमें मतलब हम गए ही नहीं, हमने अपने ज़हन को रोक लिया कि इस सलात से हमने हासिल क्या करना था, इस सौम से हमने हासिल क्या करना था, वो हासिल रसूल बीच में से निकल गया। ये मीन्स हैं, ये एंड्स नहीं है। तो बिल्कुल, इसलिए जितनी भी एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिसेस हैं, जब ये कहा गया कि सलात में मोमिन को मर्तबा एहसान हासिल होता है, होता है। अब उसके बिल्कुल, लिए वो सादा सी एक्सरसाइज है जो हदीस में बताई गई कि सलात में मोमिन अल्लाह को देख रहा होता है। अगर ये लेवल अभी नहीं है तो कम से कम ये सोचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस देख रहे कैफियत में जब आप सलात कायम करते हैं हर हरकत में, तो आपके ऊपर एक ख़ास कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है। हैं, बिल्कुल, सोम, रोज़ा रखा, रोज़े में भी हम अपने ज़हन की तोड़ फोड़ करते हैं कि रूटीन से हट के हम एक हस्ती के लिए उसकी मौजूदगी का एहसास रखते हुए अकेले बैठे हुए भी खा पी नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि एक हस्ती
जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा, ये खाना पीना माने नहीं रखता, वो हस्ती माने रखती है। ये सारे के सारे जितने भी तरीक़ाकार, जितनी एक्सरसाइजेज, जितनी भी ये इबादत हैं, इन सब को अगर हम सिर्फ इस तफक्कुर के साथ लेके चलना शुरू हो जाएं कि इसका मकसद क्या है, इसका हसूल क्या है, तो फिर इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि हम उस तफक्कुर के थ्रू उस अल्लाह की ज़ात को हासिल कर लेते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। तफक्कुर की एक डायरेक्शन और कॉन्सेंट्रेशन। एक मेडिटेशन है, उस मेडिटेशन में आप माइंडफुलनेस में आप क्या करते हैं, ज़हन को खाली कर लेते हैं, उससे आप पुरसकून हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी ख़ास मकसद के तहत, जैसे मैंने कहा कि मैं अल्लाह का इरफान हासिल करना चाह रहा हूँ, तो मुख्तलिफ तरीक़ाकार, जैसे अल्लाह ताला के किसी इसम पे फोकस किया जाता है और किसी अल्लाह की सिफ़त पे फोकस किया जाता है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार राइज हैं। जब बंदा उसमें जाता है डिटेल में, तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस अवेलेबल हैं कि इंसान जब एक ख़ास पॉइंट पे फोकस करने के बाद फिर अपने ज़हन को उस पॉइंट की तरफ मरकूज़ कर लेता है, तो बाकी ख़्यालात जो आ रहे हैं, बंदा उनको इग्नोर करने की कोशिश करता है। जैसे बिल्कुल। सलात में अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं, तो ख़्यालात फिर भी आएंगे। तो सिंपली ये कि हम उस पॉइंट पे अपने ख्याल को, ज़हन को सिर्फ उस एक ख्याल पे मरकूज़ करते हुए कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जैसे अभी हम बातें करते हुए, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में बहुत सारी और आवाज़ें, बातें, कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मुसलसल आ रही है, हम इग्नोर कर रहे हैं। फोकस हमारा इस गुफ्तगू के ऊपर है। इसी तरह से जब हम उस फोकस को मरकूज़ कर लेते हैं, तो ख्यालात जो हैं बाकी इग्नोर हो जाते हैं और फिर इंसान का ज़हन मरकूज़ रहते हुए उस चीज़ के अंदर गहराई में उतरना शुरू हो जाता है। जी उमर भाई। बिल्कुल, मुझे इससे ही आपकी एक बात याद आ गई कि आपने कहा कि जब आप इस एहसास के साथ नमाज़ पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, तो आप लिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ। कि मतलब वो मेराज वाली कैफ़ियत, या फिर मोमिन की मेराज भी कहा गया बिल्कुल। तो हम वो अपने आप को अल्लाह ताला के सामने जब इस तरह से हाज़िर करेंगे, तो डेफ़िनिटली हमारा जो इबादत का तरीका है वो बहुत ही ऊपर का होगा। तो बिल्कुल हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए अपनी सारी बातों में और अल्लाह ताला की इबादत में, और तफक्कुर करके ही हम अल्लाह ताला का इरफ़ान जो है वो हासिल कर सकते हैं, जितने भी हमें मोड्स ऑफ इबादत हमें बताएँगे उनमें। तो इसमें जब आपने ये बात की, तो एक बात थी कि रूह, अल्लाह ताला ने हम अपनी रूह फूँकी इंसानों के अंदर। अ, इस बात के बारे में जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे अ, वो वाला टाइम, या वो जब अल्लाह ताला ने कहा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने सारी की सारी रूहें बनाई और उनको एक जगह पे रख के अल्लाह ताला ने उनसे एड्रेस किया, सॉर्ट ऑफ। वो एक टाइम था जो कि हमने गुज़ारा। ऑल्दो अगर मैं अपनी बात करूँ, या हम लोगों को वो याद नहीं है। सिमिलरली हमने एक और लाइफ़ भी गुज़ारी, माँ के पेट के अंदर 9 माह का एक टाइम गुज़ारा, जिसमें हम ज़िंदा थे, लेकिन हमें उस वक़्त का भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो हम थे भी कि नहीं। उसके बाद ये एक लाइफ़ है जो हम गुज़ार रहे हैं, और हमें पता है कि इसके बाद हमने मरना है, और मरने के बाद अगले 2 जहानों के बारे में भी हमें पता है कि कब्र और उसके बाद आखिरत के 2 जो हैं वो 2 जहान हैं। तो क्या, एक तो ये है कि वो अलस्तु बिरब्बिकुम वाली बात हमें नहीं याद, उसकी एक मैं ये चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। और दूसरा, क्या हम जब इस जहान से चले जाएँगे और अगले जहान में पहुँच जाएँगे, तो क्या ये वाले जहान भी हमारे ज़िंदगी से वैनिश हो जाएँगे? उस लाइफ़ में हमें इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा और भाई एक मैं आपसे थोड़ा-सा क्वेश्चन के जवाब में एक और क्वेश्चन करता हूँ। जी, आपको अपने कोई मैट्रिक का वाक़या याद है? थोड़े याद होंगे ज़हन बिल्कुल। है ना? ज़हन में कोई अभी सोचे तो आ गया होगा कोई जी, वाक़या। जी, अच्छा चलें ठीक है। कितना टाइम लगा? बिल्कुल जल्दी से आ गया फ़ोन। आपने मैट्रिक कुछ का नाम सेकंड, लिया तो आ गया बिल्कुल। राइट। अब थोड़ा 5th क्लास पे थोड़ा-सा ज़ोर लगाएँ, कोई एक आधा वाक़या उसका भी याद करने की कोशिश करें। मुश्किल आ से जाएगा याद ना, थोड़ा आ टाइम जाएगा। जी, लगेगा। आ जाएगा, थोड़ा सोचेंगे आप कहेंगे ओके। अच्छा आपने कुछ सेकंड में आप कितने साल 10-12 साल पीछे चले गए। जी, अभी हम थोड़ा-सा और तफक्कुर किया तो आप 15 साल पीछे चले गए। अब थोड़ा-सा और गौर करें, थोड़ा बैठें। अभी आपने ये कहा कि मैं पिछला दौर भूल गया, लेकिन कभी हमने इसे याद करने के लिए टाइम लगाया? कभी सोचने की कोशिश की बस, या इतना कहते हैं कि हाँ था, गुज़र गया, भूल गया हूँ, लेकिन कभी हमने ज़हन उस तरफ लगाया नहीं। अच्छा अगर देखें आपकी पूरी ज़िंदगी जो कि एक यूनिट की शक्ल में आपके साथ जुड़ी हुई है, जो 20, 25, 30 साल की ज़िंदगी आपके साथ जुड़ गई, आप एक सेकंड में उसमें ट्रैवल करके तो पास में चले जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा-सा और डेप्थ में जाएँ तो हो सकता है कि मुझे वो दिन भी याद आ जाए जब मैं पैदा हुआ था, मैं माँ के पेट वाले वो एपिसोड भी याद कर लूँ, थोड़ा और तफक्कुर करूँ, तो ये अल्लाह ने इंसान में सलाहियत रखी हुई और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं डीप रूटेड मौजूद है। तो अल्टीमेटली अगर तफक्कुर करते-करते
तो ये रूहानियत में आपको एंटी क्लॉक वाइज, मौलाना रूम का रक्स एंटी क्लॉक वाइज क्यों कहा जाता है कि क्लॉक वाइज हर चीज़ एग्जीक्यूट हो रही, एंटी क्लॉक वाइज वो ओरिजिन में जाने की एक्सरसाइज थी। फिजिकली उन्होंने 32 घंटे एक लोहार के हथौड़े के टक टक के ऊपर जो 32 घंटे रक्स की सी कैफियत में रहे, और वो एक कैफियत उनको जो जिस ओरिजिन में लेके गई तो बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर खुली, तो बाकायदा एक्सरसाइज है वो। अच्छा, अगर आप तफक्कुर करते करते कुछ पीछे गए और पीछे जाए तो अल्टीमेटली हमें वो टाइम भी याद आ जाएगा और आ सकता है। हमने कभी टाइम ही नहीं दिया इस चीज़ को। मैट्रिक कम अज़ कम कमो बेश एक एवरेज स्टूडेंट 30 से 35 हज़ार घंटे लगा के मैट्रिक करता है। अगर उसे कैलकुलेट बिल्कुल कीजिएगा, 30 से 35 हज़ार घंटे लगा के वो मैट्रिक करता है, जिसकी कोई हैसियत भी नहीं है डिग्रीज के अंदर। बिल्कुल तो क्या हमने रूहानियत को कभी इतना टाइम दिया एक मैट्रिक की तरह? नहीं। हमने शायद 35 घंटे गिन के भी रूहानियत को नहीं दिए, अपनी असल को पहचानने को नहीं दिए, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अदरवाइज जिसने कहा कि मैंने उसमें ये कैपेसिटी रख दी है और ये उठा सकता है और ये मेरी फितरत पे है और ये मेरा बिल्कुल एक बेहतरीन तख्लीक है, लेकिन इसने अपने आप को असफला साफिलीन में फेंक लिया है, बिल्कुल जानवर से भी नीचे लेके चला गया। तो इसमें उस तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी हमारे पार्ट के ऊपर, हम उस पर तफक्कुर करें और जहन को उस तरफ लेके जाएं तो बाकायदा तसव्वुफ में, रूहानियत में ऐसे एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, मज़हब में ऐसे पूरे के पूरे पैटर्न मौजूद हैं जिसमें आप उन इबादत के थ्रू अपने उस ओरिजिन को टच कर सकते हैं। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने रूहें बनाई, अब रूहें एक होयत के आलम में थी, एक होने का एहसास था। अभी होने का एहसास आज भी हम अपने पे तारी कर सकते हैं कि अगर आपसे आपकी मेमोरी और आपका नाम छीन लिया जाए, अब थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आपकी कोई मेमोरी नहीं है, आपका कोई नाम भी नहीं है, तो आपका ज़हन एक ख़ास कैफियत में जाएगा एक आधे मिनट के बाद, जिसमें सिर्फ आपको अपने होने का एहसास बच जाएगा, क्योंकि आपकी पहचान जो इस दुनिया से जुड़ी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये मोर लेस वो हुय्यत का आलम जिसमें अल्लाह ताला ने रूहों का बनाया। अब अब रूहों ने जब आगे उस अगले प्रोसेस में जाना था, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह के प्रोग्राम में जो कुछ भी था, तो उनके हवास एक्टिवेट करने के लिए अल्लाह ताला ने पहले अपनी आवाज़ से अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब, तो सबसे पहले रूहों के हवास में उनकी समात बेदार हुई जो अल्लाह की अता की हुई थी। फिर उन्होंने जहन जब आवाज़ को जहन में मतलब प्रोसेस किया, फिर उन्होंने जब उस तरफ देखा तो बसारत एक्टिवेट हुई उनके। बसारत जैसे बच्चा जब पैदा होता है, अगर आप देखें तो स्टार्ट में वो आपकी आवाज़ और आपके बुलाने को रिस्पॉन्ड नहीं करता, कुछ अरसे के बाद उसकी समात कॉन्सेंट्रेट करती है, फिर जब वो मुतवज्जो होगा लेकिन उसकी आंखों के अंदर ठहराव नहीं होता। कुछ टाइम के बाद आप देखिए तो बच्चा आस्ता आस्ता फोकस करता है, फिर आपको पहचानना शुरू करता है। तो मोर और बिल्कुल लेस ऐसा सा प्रोसेस वहाँ पे भी चला। फिर उन सारी रूहों ने तफक्कुर किया, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत बेदार हुई, उन्होंने पूरी कायनात का एक अहाता किया होगा। तो जब पूरी कायनात का मुशाहदा किया तो इस वजह से वो मुशाहदा आज भी हमारे अंदर मौजूद है कि हमें सूरज चांद सितारे को देखे कभी अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त सारे के सारी कायनात की इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर मौजूद थी। हमने तफक्कुर करने के बाद फिर आखिर में सब ने बोलने की सलाहियत बेदार हुई, सब ने कहा कालू बला, और सब ने इकरार किया कि तू ही हमारा रब है। आप और मैं ये अल्लाह का इकरार कर चुके हुए हैं, और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि मैंने रोज़े अलस्त ये इकरार लिया ही इसीलिए था कि तुम अपने अमाल के रिस्पॉन्सिबल खुद हो जाओ, किसी को तुम ब्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप में, मेरे में और हर इंसान का अल्लाह ताला ने उस दिन ये चिप फिट कर दी थी कि तुमने मुझे पहचानना है। अच्छा, फिर उस दौर, उस मतलब टाइम में, उस जोन में वो कौन सी ऐसी बसारत थी जिसने उसको देखा था? तो अगर आज मुझे कोई बंदा है कि तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो मैं इस बसारत की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस बसारत की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने अल्लाह को देखा था, और कुरान ये कह रहा है मैंने देख के अल्लाह का इकरार किया था। जब इंसान अपने उस सफ़र की तरफ जाता है तो उसको उस प्रोसेस से भी गुजरते हुए वो रिकॉल कर लेता है कि मैं तो अल्लाह को देख चुका हूँ, वो अल्लाह को पहचानता है, उसकी फितरत में ये चीज़ शामिल है। तो उस दौर में ये, उसके बाद फिर अल्लाह ताला के प्रोसेस के थ्रू आलम अरवा से हम आलम बरज़ख में आए, ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस था। फिर हम आलम नासूत में आए, मरने के बाद आप बरज़ख के पैरेलल आलम आराफ होगा, और आराफ के बाद हशर नशर और पूरा प्रोसेस अब्दुल्लाबाद का एक पूरा सिस्टम चलेगा। ब्रॉडली इस तरह से है। तो इसमें अब जो आगे का ट्रैवल है वो तो कोई बाकी है, लेकिन ये प्रोविजन मौजूद है कि हम पास्ट में ट्रैवल करते हुए, जिसको हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज के थ्रू किया भी, हम ओरिजिन को अभी भी टच कर सकते हैं। जो बंदा ओरिजिन को टच कर लेता है उसके सामने अजल से अबद तक का पूरा रिकॉर्ड उसके सामने आ जाता है। कलम ने लिखा और लिखकर खुश्क हो गया, इसका मतलब है जो मूवी बनी वो बन चुकी है। अब इस मूवी में हमने अपना किरदार निभाते हुए जहन को किस तरफ रखना, ये चीज़ मैटर करेगी।
ٹھیک ہے عمر بھائی؟ بالکل بالکل بالکل. تو سر مطلب یہ اگر ہم اپنی فوکس کو اس طرف رکھیں اور سوچیں تو کچھ ایسی پریکٹسز اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اگر ان کی بات کریں تو ہم واپس ٹریول کر کے ان چیزوں کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال مشکل ناممکن تو نہیں ہے, تھوڑا مشکل ہوگا بٹ اسٹل ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اگر اس طرف سوچنے کا موقع دے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اب عمر یہ بھائی ساری بات یہ کہ مشکل تب تک ہے جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے نا. ہم نے سوچا نہیں ایسا آج تک. بالکل ابھی ہم نے 5 منٹ لگائے اور آپ کے کم از کم 10-15-20 سال کو ہم نے ٹائم ٹریول کروا دیا. بالکل اگر ہم ایسے روز کے 15 منٹ لگانے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا مہربانی فرمائے تو کچھ ٹائم کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر ڈیفینیٹلی وہ لستو بربکم اگر میرے تھرو ہی گزرا تو اس کا مطلب ہے میں کہیں نہ کہیں کسی پیٹرن میں ریکال کر لوں گا انشاءاللہ. لیکن ہم نے کوئی فوکس نہیں کیا, سوچا نہیں ہے. سوچیں یقین کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہم اس ڈائمینشن میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو ساری باتیں جو ہیں ہم نے باتوں کو ریلیٹ کیا قرآن مجید کو, رمضان کی ساری باتیں کی. یہ ساری باتیں ایک بابرکت ہستی جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں لے کے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دین ہمیں سکھایا اور انہوں نے ہمیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہر چیز ہمیں گائیڈ کی. اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا جو ہے وہ لقب بھی دیا گیا. تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس رحمت للعالمین کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اس کا لیول کیا ہے بیسیکلی, اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور ہمیں کہاں تک جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے, تو تاکہ ہمارے ویورز اس کو سمجھ سکیں تھوڑا. بھائی اس کو تو پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے چھوٹا منہ بڑی بات کہوں گا کہ وہ اتنی بڑی اور عظیم و شان ہستی ہیں کہ ہم جتنا بھی ان کی تعریف کریں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, وہ بالکل ایک حقیر سی کوشش ہوگی. لیکن میں تھوڑا سا اپنے ذہن کے مطابق جس طرح میں اس کے بارے میں جانتا سمجھا بوجھا, ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اسے لاجیکلی دیکھیں, رحمت للعالمین. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عالمین. تو عالمین کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب ہم عالمین کی بات کرتے ہیں تو اس میں لا محالہ ہمارے ذہن میں فوراً سے یہ بات آئے گی کہ رب جہاں پہ رب العالمین ہیں, بالکل جتنے بھی عالمین ہیں, اس کا مطلب اس سے زیادہ عالمین ایگزسٹ کرتے ہیں. اور یہ سائنس اس طرف اشارہ کرتی ہے اور روحانیت اس چیز کو جانتی ہے, مشاہدہ کرتی ہے کہ اس طرح کی بہت ساری دنیایں آباد ہیں. اب رب ہر عالم کے اوپر ربوبیت ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے اب وہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اتحیات وہ للہ والصلوات, جو اتحیات ہے بیسیکلی وہ منٹس آف دا میٹنگ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. آپ نے جاتے ہی کہا اتحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی پاکی بلند کی. آگے سے کہا گیا السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ جو بھی چیزیں پاسبل تھیں آپ نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی ہو ان پہ. اس کا مطلب سلامتی کنٹینیو نیک کار ہوگا, نیکی کرے گا, صالح ہوگا, اس پہ سلامتی ہے. رحمت اور برکت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تفویض فرمائی وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. رحمت للعالمین, اس کا مطلب جہاں جہاں ربوبیت ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے انہی عالمین میں رحمت بھی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز جو غور طلب ہے کہ جب رحمت للعالمین ایک سمندر ہے جس کے بارے میں اقبال سے بہتر کیا کوئی کہے گا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. دیکھیں یہ ڈیفینیشن ایک ایسا بندہ جو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے. پھر کہا گنبد آبگینہ رنگ, دنیا کو جو ایک رنگ و روشنی کا بنا ہوا ایک گلوب ہے, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, کہ آپ کی ذات کے احاطے کے اندر اس کی حیثیت ایک بلبلے سے زیادہ کی نہیں ہے. جس دنیا کو ہم گلوبل سٹی بول رہے ہیں, گلوبلائزیشن کہہ رہے ہیں, اس کی حیثیت رحمت للعالمین کے سمندر کے اندر ایک بلبلے سے زیادہ کی نہیں ہے. میری حیثیت کیا ہوئی پھر. اچھا, اب ایک رحمت کا سمندر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ درود بھیجا, تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ اب اس میں سخت لفظ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن میری حیثیت کیا یہ ہے کہ میں ایک سمندر جو مجھے رحمت بانٹ رہا ہے, اس رحمت میں سے جو اپنے حصے کے ظرف کے مطابق میں نے لی, اس میں سے چلو بھر گلاس بھر میں نے واپس سمندر میں ڈال دیا. سمندر کو کیا فرق پڑا, سمندر کو کیا محتاجی اس چیز سے. قرآن کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हमने कहा मैं मेरे फरिश्ते आप पे दरूद भेजते हैं, मान लो तुम भी दरूद भेजो। अल्लाह ये अकबर। भेजना क्या हुआ? कुरान तो जब यूज कर रहा है युसल्लून। अब युसल्लून का लफ्ज भी उसी का ओरिजिन भी वही है जो सलात का है, सल। वो सल का मतलब है कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं मेरे फरिश्ते युसल्लून कनेक्टेड हैं रहमतुल लिल आलमीन से, नबी से। ऐ मानो लो तुम भी कनेक्टेड हो जाओ। और सहाबा कराम इस फार्मूला से वाकिफ थे। एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं एक हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, कुछ हिस्से दुआ मांगता हूँ, लेट्स से के 2 हिस्से दुआ मांगता हूँ, एक हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। आपने फरमाया से बढ़ा दो तो बेहतर है। अब अगली दफा आए तो वो उन्होंने बढ़ा के 2 हिस्से वो कर दिया, तो एक हिस्सा दुआ रह गई। आपने कैसे और बढ़ा दो बेहतर है। वो अगली दफा तो मैं पढ़ता ही दुरूद शरीफ दुआ के अंदर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह मुझे कनेक्ट कर दे, मुझे ज़ात से कनेक्ट कर दे, मुझे ज़ात से जोड़ दे, मुझे हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट कर दे। ये कनेक्टिविटी की एक दुआ है। दुरूद को अगर हम कहें मैं कुछ भेज रहा हूँ तो अगर आप इस ज़हन से पढ़िएगा वो भी चीज़ ठीक है। आप मोहब्बत का कोई नजराना पेश कर रहे हैं, उसे नेगेट नहीं किया जा सकता। दुरूद सलाम बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन इसमें जरा ज़हन ये वाला शामिल कर लें कि ये एक दुआ के तर्ज में इसे करें कि मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, सख्ती से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ जो कि अल्लाह ताला से वाकिफ है। अब इस पे और थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी अजीम शान, और अल्लाह ताला की आप समझ लें तजल्लियात का वो लेवल, वो उसका वो लेवल इस एक्सट्रीम के ऊपर है कि कोई भी चीज़, जैसे कोहे तूर भी बर्दाश्त नहीं कर सका, मूसा भी जो है वो उस कैफियत में किसी और कैफियत में चले गए। अच्छा, अब अगर ये कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अल्लाह ताला की तजल्लियात जब उस जोन से जोन में ट्रेवल करती हैं, अब उस जोन से ट्रेवल करने के लिए यहाँ पे जैसे आपके बैकग्राउंड में, मेरे बैकग्राउंड में एक रोशनी बल्ब या ट्यूबलाइट लगी हुई है, और भाई अगर इसको डायरेक्टली हम जाके तो तिरबेला डैम से जोड़ दें तो क्या सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा इसको? इस 220 240 वोल्ट वॉट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बीच में ग्रिड ट्रांसफॉर्म स्टेशन करना लाना पड़ता है, पड़ता है, ग्रिड स्टेशन लगाने पड़ते हैं। ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। वो जो थाउजेंड्स ऑफ वॉट एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो एग्जीक्यूट कर सकता है और एग्जीक्यूटेबल ये सस्टेनेबल एक चीज़ बन जाती है। रहमतुल लिल आलमीन दरअसल अल्लाह ताला के और इस कायनाती सिस्टम के बीच का वो ग्रिड स्टेशन है कि अल्लाह की तजल्लियात उसे ट्रांसफॉर्म होने के बाद, अब देखें, आप एक तरफ आप कहते हैं हम का मतलब है तारीफ सिर्फ, ठीक। बिल्कुल। अब अलहम्द, अल्लाह की अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल रब्बिल आलमीन। आलमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, वसल्लम। अहमद, हामिद, महमूद, ये चारों नाम बेसिकली इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये वो हस्ती है जो अल्लाह ताला की उन सिफात को इस एग्जीक्यूटेबल बनाते हुए, ग्रिड स्टेशन से गुजरते हुए, ताकि ये चीज़ें तख्लीकी सिस्टम के अंदर उसी तरह से एग्जीक्यूट हो सके जैसे प्लान का हिस्सा है। अगर डायरेक्टली वो तजल्ली इधर आए तो ये चीज़ें इस चीज़ को बेयर नहीं कर सकती, इनके अंदर वो सकत नहीं है। तो सकत पैदा करने वाली जो हस्ती है वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे फरिश्ते जो चीज़ भी एग्जीक्यूट करेंगे, हम रहमतुल लिल आलमीन के सिस्टम से कनेक्टेड हैं। मान लो तुम भी कनेक्टेड हो जाओ। अंबिया भी इस फार्मूला से वाकिफ थे कि उन्हें भी पता था कि सिस्टम से गुजरे बगैर अल्लाह का इरफान हासिल नहीं हो सकता। उस सूरह इमरान में अल्लाह ताला ने अंबिया से भी अहद लिया, जैसे हमसे अहद लिया लस्तु बिरब्बिकुम वला दिन, अंबिया से भी अहद लिया कि जब तुम्हारी एक तायद करने वाले आ जाएं, 82 83 आयत है, तायद करने वाले आ जाएं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला उनसे अहद लिया है कि तुमने उनके साथ मतलब उनकी हेल्प करनी है। अल्लाह ताला ने अपने को मतलब 2 दफ़ा गवाह भी बनाया अपने आप को, और अल्लाह ताला ने उससे अहद भी लिया। तो वो एक ऐसी आयत है जिसमें अंदाजा होता है कि इन हस्ती का इनका लेवल क्या है। रहमतुल लिल आलमीन आलमीन। वो एक ऐसा ग्रेट स्टेशन जिससे अल्लाह ताला का पूरा सिस्टम जो एग्जीक्यूट हो रहा है। मोहम्मद, अहमद, हामिद, महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए तो ये वो अल्लाह की मतलब एक हस्ती है जिसके थ्रू, इसलिए वो जो बड़ों ने बड़ी बात कर दी, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अब दोबारा इकबाल का शेर पढ़ते हैं इस रहमतुल लिल आलमीन को अंडरस्टैंड करने के बाद। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बद आप की न रंग, तेरे मुहीत में हबाब। अब पूरी नात पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जानने वाला बंदा जब वो नात कहता हो तो क्या बात करता है। और हम जो है उनके एक दुनियावी रुख, जो बशरी रुख से वाकिफ होकर जो नात गोई करते हैं, हम सिर्फ उसको मदीना और आपसे उनके जिस्मानी रुख से जोड़ देते हैं। ठीक है, वो भी प्यार मोहब्बत की बात है, लेकिन हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूशनास बंदा जब वो ये इस बात को देखता है तो वो बताता है कि पूरी कायनात के अंदर रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन तो सिस्टम है जो पैरेलल चल रहे हैं। तो दुरूद शरीफ को आज के बाद जरा पढ़िएगा दुआ समझते हुए कि आप
اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہستی سے جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے عرفان کی طرف جانے والا ایک ہی زینہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اس سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا. پھر جب اس ذات سے جو کنیکٹ ہو گیا پیچھے کچھ بچتا کوئی نہیں ہو گئی. بالکل بالکل سر، بالکل بہت خوب آپ نے جو ہے اس کو بتایا. اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے سوچنے اور اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس ہستی سے کنیکٹ ہوں، اور الٹیمیٹلی پھر وہ ہی کنیکشن ہمارا جو ہے وہ ہمیں آگے بھی لے کے جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور ہم نے لوگوں کو رمضان کے بارے میں باتیں کی، رمضان کی فضیلت، قرآن مجید اور باقی ساری چیزیں ہم نے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ چیزیں اچھے آمین. طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئیں.